Hello, candidates. This side, your friend Siddharth. And yes, first of all, I would like to thank all of you after seeing the response to the last video that was related to the noting, which I have already uploaded on my YouTube. And after watching that response, truly, I was truly overwhelmed. See, before initiating this video, I want to clarify one thing. I will keep this video in English, not English or Hindi, because many southern Indians are asking me to keep this video in English, but many northern Indians have suggested me it it will be better if you will keep it in English because Hindi plus English will be the best suitable language for us. So in my opinion, that particular video of noting was sufficient for all of you guys. In the same continuation, we will keep, or I am now bringing a video on drafting, okay, where everything will be covered in the simplest possible manner. देखो होता क्या है कि normally before learning government drafting, you are expected to study the CSMOP 2022. Okay, now, however, I am assuring you that after watching this particular video, you will not need to any book or CSMOP 2022 separately. मतलब ये पूरा वीडियो its content will be applicable to all examinations, चाहे it can be your UPSC, SO, LDC, your MCRE, or any government officials in admin department. If he wants to know what is drafting, he can watch this video very carefully. Okay, now let me tell you what we are going to learn today. This is the most important and most crucial part because this particular single video will be the enough for you, and one mistakes in this whatever we are going to discuss can lead to the 0 marks. बताऊंगा कैसे. See, in your examinations, exam paper will contain only the question. उस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा whether you have to draft the one, letter, DO or anything else. So the major thing is that you have to identify that which drafts we are going to make or draft. We will actually learn how to decide in the examination which type of communication draft has to be prepared. If you master in this, then जो बाकी का जो फॉर्मेट है that will automatically become easy. And it has been also observed, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, that in examination candidates makes nearly 60 to 70% mistakes in identifying which drafts is required. बेसिकली उनको फॉर्मेट्स तो याद था, ठीक है, बट उन्होंने ड्राफ्ट ही रॉन्ग चूज कर लिया. जहां पे आपको लेटर बनाना है वहां ओएम बना दिए या आईडी नोट बना दिए. सो होता क्या है, जो एग्जामिनर है ही डज नॉट इवन चेक द रेस्ट ऑफ द आंसर. अगर आपका पहला आपने इनिशिएशंस किया लाइक लेटर से और ओएम बनाना था, तो एग्जामिनेशन लेने वाले लोग हैं एग्जामिनर, ही विल नॉट गो अहेड. दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. सो वी विल केयरफुली ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग or every point which I will discuss with you guys, from starting from the absolute basic and moving step by step ahead. All right, let's begin from the very beginning. देखो, मैं आपके पास में ये प्रोवाइड करके रखा हूं, ठीक है, कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कैसे होती है. बेसिकली ड्राफ्टिंग जो आप बनाने जा रहे हो वो होता क्या है. इसमें आप देख सकते हो एक रिसीविंग डेक है, एक रजिस्टर नंबर असाइन कर रहे हैं, एक में जो डीलिंग असिस्टेंट है वो नोटिंग बना रहा है, फिर जो सेक्शन ऑफिसर है या आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो अप्रूवल कर रहा है. देन एक ड्राफ्टिंग ऑफिसर होगा जो डीलिंग असिस्टेंट भी हो सकता है या डीलिंग ऑफिसर्स बोलते हैं. अप्रूवल मिलने के बाद में ड्राफ्टिंग ऑफिसर्स, फिर ये पब्लिश होगा गैजेट में. समझाता हूं मैं कि एक्चुअली होता क्या है. तो ये क्वेश्चन गिवन था आपके पास, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे.
तो उस आइडेंटिफाई करने से पहले वी विल डिस्कस हाउ द ड्राफ्ट टेक्स प्लेस। देखो जस्ट इमेजिन इसमें क्या क्या होगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि एक दिन हुआ क्या कि जो एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में एक फीडबैक आता है आपके पास दैट ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टाफ कंटेंस रिपीटेड मिस्टेक्स, कि जो आपका स्टाफ था जो हमें ड्राफ्ट भेज रहा है, कहाँ से आए, किसी मिनिस्ट्री से आया है। मिनिस्ट्री ने एक आपके पास में फीडबैक भेजा कि जो भी ड्राफ्ट आपके जो शख्स AAO है या JO है वो बना के भेज रहे हैं उसमें कुछ रिपीटेड मिस्टेक आ रही है, उसकी वजह से जो भी वर्क है वो क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। नाउ ये जो फीडबैक आया है हमारे पास, ठीक है, दिस कम थ्रू एन इंटरनल नोट, ठीक है, और जैसे ये हमारे पास फीडबैक आया है इसको जो क्लर्क है यहाँ पे ही विल रिसीव इट, ठीक है, एंड देन आफ्टर ही विल एंटर इनटू द हिज डायरी। नाउ अब होगा क्या, यहां आ गया। अब उसके बाद में हम जैसे ही डीलिंग हैंड उसको एंटर करेगा डायरी में, देन आफ्टर ही विल गो अहेड फॉर फाइल क्रिएशन। इसमें क्या होगा, एक न्यू फाइल ओपन होगी, ठीक है। इस फाइल में आपके अभी देखो ड्राफ्ट नहीं बनाया, या इस चीज का ध्यान रखना, अभी तो फाइल नंबर ही असाइन हो रहे हैं। फाइल नंबर दिया जाएगा, उसने फाइल नंबर दे दिया कि ये हमारे पास एडमिन में आया है, रिसीव हुआ है, और किससे रिलेटेड है। वो बोल रहे हैं कि आपका जो स्टाफ है ना उसको अभी तक ड्राफ्ट बनाना नहीं आ रहा, इसलिए एक ट्रेनिंग कंडक्ट करो। क्या करो, ट्रेनिंग कंडक्ट करो। तो वो फाइल नंबर दे दिया, और फाइल नंबर के बाद में यहां पे उसने जो स्पेस है उसको स्किप कर दिया, एंड देन ही रोट कि 2026। अब ये इसमें क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, कि आपके जो स्टाफ के लिए ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग करना है, तो आप यहाँ पे इसको दे दिए ट्रेनिंग। अभी तो आपका फाइल क्रिएशन हो रहा है जिसको इंडेक्सिंग बोलते हैं, कि एक न्यू फाइल विद सेपरेट नोट्स एंड करस्पॉन्डेंस पार्ट नंबर टाइटल। यहाँ पे करस्पॉन्डेंस वो जो आपके पास फीडबैक आया वो डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इंडेक्स डाल दिया आपने, और आपकी ये फाइल क्रिएशन हो गई। अब जो डीलिंग असिस्टेंट है वो क्या करेगा, ही विल एग्जामाइन, फिर ये फाइल क्या करेगी, यहां से पहुंच जाएगी किसके पास में, डीलिंग असिस्टेंट के पास में। डीलिंग असिस्टेंट क्या करेगा, ही रीड्स द इशू वेरी केयरफुली, ठीक है, एंड ही विल चेक पास्ट फाइल वेयर ड्राफ्टिंग एरर्स अकर्स। क्योंकि आपके जो डिपार्टमेंट ने उस मिनिस्ट्री को कुछ ड्राफ्टिंग फाइल भेजी होगी पहले, और उसने मिनिस्ट्री ने पाया कि आपने उसमें मिस्टेक करके रखा है, तो वो जो पुरानी वाली फाइल्स है ही विल चेक फैक्ट्स, और फिर क्या करेगा, उसे भी लगेगा कि हाँ कि ड्राफ्ट में मिस्टेक है, तो ही विल रिफेयर्स टू रूल अलाउइंग स्टाफ ट्रेनिंग। तो स्टाफ ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सा रूल्स होता है, ही विल अलाउ। दोबारा से अपनी स्टोरी पर जाते हैं। मिनिस्ट्री ने एम्स को क्वेश्चन भेजा, यही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ में हम नेक्स्ट चलते रहेंगे। क्वेश्चन क्या हो रहा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, पिछले 4 साल से, ऑन एट लीस्ट 3 occasion, इंपोर्टेंट ID नोट्स प्रिपेयर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जो एम्स के, याद रखो क्वेश्चन क्या गिवन था, एम्स के जो एडमिन स्टाफ में जो ID नोट बन रही थी, ठीक है, 4 साल में, इसमें 3 occasion पर ये देखा गया है, 3 बार ऐसा देखा गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रिफर किया गया था। ID नोट भेजी गई थी एम्स के एडमिन डिपार्टमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ड्यू टू रिपीटेड डिस्क्रिपेंसीज एंड डिफिशियंसी नोटिस्ड इन ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द ऑफिशियल कंसर्न, अवॉइडेबल डीलर्स अकर द सबमिशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। इस मिनिस्ट्री ने, जो अपनी मिनिस्ट्री फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, इसने ये देखा कि उस डिस्क्रिपेंसीज की वजह से, उसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया था ID का, उसमें कुछ मिस्टेक्स होने की वजह से फर्दर कम्युनिकेशन के सबमिशन में लेट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो टेकिंग ए सीरियस व्यू ऑफ द मैटर,
ये मैटर को सीरियस व्यू में लेना है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डायरेक्टेड दैट प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड to the official of the administration section so as to improve the quality of drafting and avoid recurrence of such lapses in future। तो एम्स के डिपार्टमेंट में जो सेक्शन ऑफिसर है या जो भी ऑफिसर है उसने ये डिसीजन लिया है कि जो भी एडमिन डिपार्टमेंट में लोग हैं, मतलब मान लो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने ये लिया है कि जो भी आपके अंडर यूडीसी वर्ग वगैरह काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अकॉर्डिंगली द मैटर वॉज प्लेस्ड बिफोर द डेप्यूटी डायरेक्टर जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, और एयू के बाद में ये जो इंफॉर्मेशन है वो डेप्यूटी डायरेक्टर तक गई है, एंड देयर आफ्टर बिफोर द जॉइंट सेक्रेटरी, और उसके बाद में वो जॉइंट सेक्रेटरी तक रखा गया है। ठीक है, ये बात ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर who have recommended that one day training workshop may be organized for all official of AIIMS administrative section in collaboration of Department of Personnel and Training DOPT। तो इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है एम्स का विद DOPT। तो आपको एक सुटेबल ड्राफ्ट और कम्युनिकेशन तैयार करना है फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें ये होगा कैसे, तो ये जो फैमिली वेलफेयर वालों ने एम्स को भेजा, क्योंकि एम्स वाले ऑलरेडी आईडी नोट्स भेज रहे थे और उसमें जो मिस्टेक्स हो रही थी बार बार हो रही थी, इस वजह से वो जो असिस्टेंट था उसने क्या किया, जो भी रूल्स स्टाफ ट्रेनिंग के लिए अलाउ करता है उनको वो रेफर करेगा। डीए जो अंडरस्टैंड्स क्या करता है, डीए को ये लगता है कि हाँ एक ट्रेनिंग की जरूरत है, देन आफ्टर नाउ इट विल गो फॉर नोटिंग। फिर जो डीए है वो एक नोट तैयार करेगा। नोट में क्या क्या करेगा, सबसे पहले तो वो जो भी बैकग्राउंड है ही विल एक्सप्लेन अबाउट दिस कि हमारे पास ऐसे ऐसे एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हमारे पास एक फीडबैक आया है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि 4 साल में आपसे 3 बार मिस्टेक हो चुकी है, डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हो चुकी है। और वो ये भी दिखाएगा, जो थर्ड पार्ट में उसने जो भी रूल्स के बारे में देखा था कि ट्रेनिंग रूल्स के लिए कौन सा रूल्स अलाउ करता है, वो भी उसको इसमें नोटिंग में डाल देगा एंड दैट ही विल प्रिपेयर द प्रपोजल। तो आपको समझ आ गया कि ड्राफ्ट तो बाद में तैयार होगा, पहले क्या तैयार होगा, नोटिंग तैयार होगा, डीलिंग असिस्टेंट करेगा। ठीक है, अब नोटिंग तैयार होके क्या करेगा कि जो भी आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी है उसको भेजा जाएगा। जब नोटिंग लिखते हैं तो हम लास्ट में लिखते नहीं है क्या, जो मैं लास्ट टाइम बताया था कि अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज सोलिसिटेड टू कंडक्ट वन डे ट्रेनिंग वर्कशॉप एंड इश्यू एन ऑफिस मेमोरेंडम, जो भी है। अब देखो ये नोटिंग है सिर्फ, दैट इज नॉट ड्राफ्टिंग। अब जो भी आपकी डिसीजन है दैट विल बी टेकन बाय द अथॉरिटी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये फाइल वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी। जो सेक्शन ऑफिसर है डीलिंग असिस्टेंट की बात से क्या करेगा, एग्री करेगा, और जो अंडर सेक्रेटरी है वो रिकमेंड करेगा। क्या रिकमेंड करेगा, और फिर जो फाइनली आपका डेप्यूटी डायरेक्टर है वो अप्रूव करेगा ड्राफ्ट को, और वो बोलेगा डायरेक्टर फॉर ड्राफ्टिंग, डायरेक्शन मिला जाएगा कि आप ड्राफ्ट तैयार करो और कौन से फॉर्मेट में होगा ही विल राइट। वो पढ़ने के बाद में जो डीलिंग असिस्टेंट ने अप्रूवल अथॉरिटी को भेजा है उसके बाद में ही विल राइट दैट अप्रूव्ड, मैं अप्रूव करता हूँ आपकी जो नोटिंग को। देन आफ्टर ड्राफ्ट ही विल सजेस्ट ड्राफ्ट ओवन मे बी इशूड। जो आप ड्राफ्ट करोगे वो क्या करोगे, ऑफिस मेमोरेंडम। अब ये जो सिंगल लाइन है ना, ये जो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप ऑफिस में जाओगे देन आफ्टर ये सिंगल लाइन अप्रूव्ड ड्राफ्ट ओवन मे बी रिक्वायर्ड, ये ट्रिगर पॉइंट है आपके ड्राफ्टिंग को एक्टिवेट करने का। समझ रहे हो? फिर यहां से आपका ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका ड्राफ्टिंग एक्चुअल राइटिंग स्टेज होगा जिसमें अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में होगा, ओएम बनेगा, लेटर बनेगा, ऑर्डर बनेगा इन विच क्लियर लैंग्वेज। फिर उसके बाद में कुछ करेक्शन होंगे कि सबसे पहले हम डायरेक्शन फॉर ड्राफ्टिंग, मतलब ड्राफ्ट कैसे करेंगे, क्या क्या इशू है, तो हमें पता है हमें ऑफिस मेमोरेंडम इशू है। पर्पस क्या है, अबाउट ट्रेनिंग वर्कशॉप, और इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर होगा, एम्स का एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होगा। फिर यहाँ पे एक होगा, फिर आप ड्राफ्टिंग करोगे, ड्राफ्टिंग में ओएम का जो फॉर्मेट होगा, सब्जेक्ट लाइन होगी, रेफरेंस ऑफ अप्रूवल होगा, क्लियर इंस्ट्रक्शन होंगे कि डेट कहाँ होगी, वेन्यू क्या होगी, अटेंडेंस क्या होगी, और कोई भी नया आइडिया इसमें बियॉन्ड द अप्रूवल ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब आता है वेटिंग।
वेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेकिंग द ड्राफ्ट्स। ठीक है, अब होगा क्या कि जो भी आपका सेक्शन ऑफिसर है वो आपकी ड्राफ्ट की लैंग्वेज को चेक करेगा। तो वो क्या क्या चेक करता है इसमें, एक तो लैंग्वेज चेक करेगा, एक क्या फॉर्मेट आपका जो ओएम का है वो सही है या नहीं है, और उसमें क्लैरिटी क्लियर है या नहीं है। ठीक है, और जो भी माइनर करेक्शन अगर है तो वो बना सकता है। देन एक फाइनल अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट हो जाएगा कि जो, क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ है, इसकी लैंग्वेज में चेंज कर सकता है, फॉर्मेट हो सकता है, क्लैरिटी में अगर कहीं मिस्टेक हुई तो सेक्शन ऑफिसर आप वेटिंग में क्या करेगा, सेक्शन ऑफिसर उसको करेक्ट करेगा, और फिर वो जो करेक्टेड फॉर्मेट है दैट विल बी पुट इन फ्रंट ऑफ योर डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर हू एवर कंसर्न। ठीक है, और उसके बाद जो डायरेक्टर है ही विल इनिशियल्स द ड्राफ्ट। नाउ योर ड्राफ्ट इज ऑफिशियली अप्रूव्ड। अब उसके बाद में आप इसको क्या कर दोगे, इशू कर दोगे, एंड देन आफ्टर इट कैन बी डिस्पैच्ड। अब होगा क्या कि सबसे पहले आपका जो ड्राफ्ट है वो प्रिंट आउट कर लिया जाएगा, मीन्स प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल लेटर हैंड। उसके बाद में साइन हो गए, और उसके बाद में इसको डायरी नंबर दे दिया जाएगा, और उसके बाद जितने भी सेक्शंस है इट कैन बी सेंड थ्रू योर ईमेल। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास जो भी इशू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इशू क्या आइडेंटिफाइड हुआ है। मैं आपको अगर शॉर्ट में समझाता हूँ, देन आफ्टर आपकी फाइल ओपन होगी, एक फाइल बनेगी, उसमें इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, करस्पेंडेंस रखा जाएगा, मैं समझाया था ना यहाँ पे ये वाली। देन जो आपका डीलिंग असिस्टेंट है ही विल एग्जामाइन द थिंग्स, देन ही विल राइट द नोटिंग। ओके, आफ्टर राइटिंग नोटिंग जो अप्रूवल ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी विल अप्रूव इट। देन फिर जैसे ही अथॉरिटी अप्रूव करेगी ही विल डायरेक्ट फॉर द ओएम, फिर ओएम या फिर जो भी ड्राफ्ट आपको डायरेक्ट करना है वो कर देंगे। देन ड्राफ्ट विल बी प्रिपेयर्ड। ओके, देन आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट इट विल गो फॉर वेटिंग, कि जो भी सेक्शन ऑफिसर उसको उसमें माइनर करेक्शन करेगा। देन आपका फाइनल अप्रूवल होगा, एंड देन ओएम विल बी इशूड, जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो इशूड हो जाएगा। अब नाउ यू विल आस्क मी कि हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर दिस विल बी ए ओएम और नोट। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। इसके लिए हम पूरी चीज़ों को इंटायरली इसके थ्रू समझेंगे। कंप्रेहेंसिव आइडेंटिफिकेशन टेबल में इसमें सब कुछ डाल दिया, आपका लेटर है, डेमी ऑफिशियल है, ऑफिस मेमोरेंडम है, ऑफिस ऑर्डर नोटिफिकेशन रेजोल्यूशन एंड प्रेस कम्युनिटी। ठीक है, उसके अलावा एंडोर्समेंट है और माइनट्स है जिसको मिनट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में वन बाय वन आगे देखते हैं, देखो कैसे होगा। अब अगेन वी विल गो टू द अवर क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। देखो, इस क्वेश्चंस में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो एम्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसने कुछ मिस्टेक्स की है। पिछले 4 साल से आपके पास 3 बार आपने मिस्टेक की है, और वो पुअरली ड्राफ्टेड थे जो आपने आईडी नोट्स भेजा है। ठीक है, उस वजह से क्या किया कि जो आपकी फाइल है वो वेंट बैक एंड फोर्थ, और उस वजह से वर्क गॉट डिलेड, और मिनिस्ट्री खुश नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो स्टाफ है ही डज नॉट नो हाउ टू ड्राफ्ट प्रॉपर्ली। अब बॉस क्या करता है, देखो जो बॉस है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इस इश्यू को देखता है, और वो कहता है कि दिस इज वेरी सीरियस और स्टाफ नीड ट्रेनिंग सो दैट मिस्टेक डोंट हैपन अगेन। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा, इसमें ना तो कोई सजेशन है, सजेशन नहीं है, वो साफ साफ बोल दिया कि हमें एक ट्रेनिंग लेनी है, ना ही यहाँ पे कुछ डिस्कशन है। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लेटर क्यों नहीं हुआ, ओएम क्यों होता है। और उसने फाइनल डिसीजन दे दिया, फाइनल डिसीजन क्या दे दिया कि ओवर स्टाफ नीड्स ट्रेनिंग सो दैट मिस्टेक डोंट हैपन अगेन। तो यहाँ पे ना तो सजेशन है ना डिस्कशन है। उसके बाद क्या होता है, फाइल आपके पास किस तरह जाएगी, ये डेप्यूटी डायरेक्टर के पास में रखी जाएगी। ठीक है, वो एग्री हो जाएगा। देन सेंड टू द जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाएगी जो कि मिनिस्ट्री है, वो एग्री हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होता है,
फाइनल कंक्लूजन यही होता है कि आपको एक दिन की ट्रेनिंग देनी है। जो भी आप जितने भी एडमिन ऑफिशियल है उनसे आप हेल्प ले सकते हो फ्रॉम योर डीओपीटी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो हम क्या देखें कि सभी लोग एग्री हो चुके हैं। कौन? बॉस आपका जो कंपिटेंट अथॉरिटी, डेप्यूटी डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी। कोई आगे आपको कोई थिंकिंग नहीं करनी है। नाउ इट्स टाइम टू इन्फॉर्म इम्प्लीमेंट। तो आप अपने आप से एक चीज पूछो कि अब हमें क्या जरूरत है। क्या हमें किसी की ओपिनियन जरूरत है? आप कहोगे नो। क्या हमें ये आइडिया किसी से डिस्कस करना है? नो। क्या हमें किसी का अप्रूवल लेना है? नो। तो आंसर है नो। तो हमने क्या किया कि इन्फॉर्म ऑल ऑफिशियल दैट ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड। ठीक है, तो ये इस तरह से एक सिचुएशन बनती है। ठीक है, और इस सिचुएशन में हमेशा क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम बनता है। ठीक है, अब ऑफिस मेमोरेंडम कैसे बनेगा? क्योंकि आईडी नोट, सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी नोट क्यों नहीं बनी। आईडी नोट क्या होता है बेसिकली? ये एक तरह से ना व्हाट्सएप बिटवीन डिपार्टमेंट होता है, एक व्हाट्सएप टाइप का होता है ये आईडी नोट। अगर आप देखो ना, तो आईडी नोट क्यों नहीं बना? क्योंकि सब लोग ना, काफी लोग आईडी नोट बना के आए थे। इट इज लाइक ए व्हाट्सएप बिटवीन योर डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है आईडी नोट्स में? आईडी नोट्स में ऐसे होता है कि व्हाट डू यू थिंक, प्लीज गिव योर व्यूज। लेकिन मैंने पहले बोला था यहाँ पे कोई थिंकिंग विंक का तो है ही नहीं। लेटर कब होता है? कि लेटर हमेशा आउटसाइडर के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? आउटसाइडर के लिए। जैसे वेंडर हुआ, एनजीओ हुआ, इंडिविजुअल हुआ, यूपीएससी हुआ, ऐसे वर्ड। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या क्या है? इन योर इनसाइड गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर अंदर की बात है। और ऑफिस ऑर्डर क्यों नहीं है? ऑफिस ऑर्डर तब होता है जब कोई किसी को ट्रांसफर कर दिया गया, किसी को प्रमोशन दे दिया गया। तो यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं है, तो ऑफिस ऑर्डर भी नहीं है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा आपका ऑफिस मेमोरेंडम। ओके, अब आप कहोगे कि ऑफिस ऑर्डर ही क्यों बना? ऑफिस ऑर्डर में एक फॉर्मूला हमेशा लाइफ टाइम याद रखो। सिर्फ अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, हैज द कंपिटेंट ऑथोरिटी ऑलरेडी टेकन ए डिसीजन? क्या इस क्वेश्चन में जो आपका कंपिटेंट ऑथोरिटी था, क्या उसने डिसीजन ले लिया था? बिल्कुल ले लिया था। हमने बात कर लिया था कि जो बॉस है वो फाइनल डिसीजन ही दे दिया है। जब भी फाइनल डिसीजन आ जाए ना, तो हमेशा ऑफिस मेमोरेंडम बनेगा। ठीक है, ना तो आईडी नोट बनेगा ना नोट, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला कि ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा। यहाँ पे बोला है ड्राफ्ट ए सुटेबल कम्युनिकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट ऑथोरिटी। ठीक है, कंपिटेंट ऑथोरिटी में जो आपका ऑलरेडी कंपिटेंट ऑथोरिटी है हैज डायरेक्टेड दैट प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड टू द ऑफिशियल। उसने ऑलरेडी बोल दिया है, ही हैज ऑलरेडी टेकन द डिसीजंस। इस वजह से वो ऑफिस मेमोरेंडम है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में एक्सप्लेन करूं, तो ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है? हम हर एक चीज के बारे में, एक ऑफिस मेमोरेंडम इज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इन दिस केस बिकॉज इट इज यूज टू फॉर्मली कन्वे एन अप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट ऑथोरिटी फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, तो ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है, और अप्रूवल मिलने के बाद में सिर्फ हमको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, डिसीजन लेना है, तो वो हमेशा ऑफिस मेमोरेंडम के बेसिस पे ही होगा। ओके, देखो ये चीज़ आपको एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में देखना है तो हमको टेबल पे आना पड़ेगा, टेबल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप ये जब टेबल पढ़ लोगे ना, तो उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, आपको खुद को पता चल जाएगा क्या बनेगा क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की, कि लेटर कब लिखा जाता है। सबसे पहले लेटर होता क्या है? एक जो लेटर होता है वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी लिखती है, हु इज नॉट पार्ट ऑफ इट्स इंटरनल ऑफिस सिस्टम। याद रखना, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जब भी वो कुछ भी लिखती है या किसी को भी लिखती है हु इज नॉट पार्ट ऑफ हिज इंटरनल ऑफिस सिस्टम, तो वो लेटर में लिखा जाएगा। मान लो कि आपकी बिल्डिंग के बाहर लिखना है, ऐसे सोच के चलो। गवर्नमेंट इसको क्यों यूज करती है? क्योंकि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट होती है, यूपीएससी जो कि पब्लिक इज आउटसाइड गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर इंडिपेंडेंट। तो जब भी आप में को यहाँ कुछ नजर आ जाए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट लिखती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूपीएससी को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, पीएसयूज को, पब्लिक को,
PSU पब्लिक स्कूल, तो उनको क्या है, गवर्नमेंट हमेशा फॉर्मली और रेस्पेक्टफुली बात करती है। ठीक है, तो जब लेटर कब लिखना है, जब भी करस्पॉन्डेंस विद एंटाइटीज आउटसाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस सिस्टम, तो ही किस किस के बीच में हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, PSU पब्लिक, इनके बीच में। अब इसमें क्या होगा कि कुछ हिडन एग्जाम कीवर्ड है, जैसे डायरेक्टेड, रिक्वेस्टेड, अप्रूव्ड, ये जो वर्ड है ना, इनको देख के काफी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्चुअली मिसलीडिंग है, क्योंकि ये जो बच्चों का याद करने का तरीका, जैसे मैंने देखा है कि LDC SO में लोग बताते कि रिक्वेस्टेड, इन्फॉर्म, डायरेक्टेड, ये वर्ड को आपको पकड़ना है और उसके बेसिस पे लेटर बना देना। ये बिल्कुल नहीं होता। ये कभी भी ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सा फॉर्मेट बनेगा। इसमें डिसाइड ये करता है कि हु इज रिसीविंग। आपको जो याद रखना है इसमें लेटर में, इतना याद रखना है कि हु इज रिसीविंग, कौन रिसीव कर रहा है। क्या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, यूपीएससी करी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करी, PSU पब्लिक, तो आप लेटर बना दो। ठीक है, मेरा मतलब है अगर कोई रिसीवर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का सिस्टम है तो आप कहोगे नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, यूपीएससी नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती, PSUs नहीं होती, पब्लिक, ये तो वहां पे लेटर बनेगा। ठीक है, नाउ बेटा देखो, अगर सेम स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी पब्लिक लिखा हो, अगर ये भी लिखा हो, तो बिना सोचे समझे लेटर बना दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इफ रिसिपेंट इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, तो लेटर बनेगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा है डेपुटेशन के बारे में, तो आप लेटर बनाओगे, ना कि ओवन। अब सब दूसरी चीज पे जाते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर कब लिखा जाता है। डेमी ऑफिशियल लेटर के मतलब, मान लो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं और मेरे ही डिपार्टमेंट में दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो कि मेरे से सीनियर है और काफ़ी 5-4 साल से है। मुझे उससे कुछ हम दोनों सेम लेवल पे हैं या 1-2 लेवल ऊपर हो सकता है, वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या सजेशन लेनी है मेरे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मेरे डिपार्टमेंट में, तो मैं डेमी ऑफिशियल लेटर में लिख सकता हूँ। अब जैसे लेटर लिखते हो तो इसमें क्या है ना, आपकी लैंग्वेज फॉर्मल वगैरह ये होनी चाहिए। वो फॉर्मेट्स कैसा लिखा जाएगा, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। सिर्फ इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ओके, तो डेमी ऑफिशियल लेटर में क्या होगा, ये ऑफिसर टू ऑफिसर होता है हमेशा। ओके, और फ्रेंडली होता है, कोई ऑफिशियल नहीं होता। तो देखो, यूज टू ड्रॉ पर्सनल अटेंशन ऑफ अनदर ऑफिसर ऑन ऑफिशियल मैटर, कोई भी ऑफिशियल मैटर। ऐसे नहीं कि भाई चाय पीने चलेगा तो ऑनलाइन लिख दिया, नहीं, ये नहीं होता है डेमी ऑफिशियल लेटर। तो गवर्नमेंट इसको क्यों यूज करती है, क्योंकि कोई भी काम को स्पीड अप करने के लिए या कोई भी पर्सनल अटेंशन के लिए, या जब भी आपकी फाइल मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो रही है, तो आप डेमी ऑफिशियल लेटर भी दे सकते हो। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स होंगे पर्सनल अटेंशन नाम से, या अर्जेंट, या आई वुड रिक्वेस्ट, ये जहां पे भी दिखाई दे दे क्वेश्चन में, तो आपको क्या बनाना है, डेमी ऑफिशियल लेटर बनाना है। इसमें एक आदमी एक AO दूसरे AO को भेज रहा है, या एक AO दूसरे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भेज रहा है कि प्लीज़ ये काम थोड़ा स्पीड अप कर दो। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, क्या एक ऑफिसर पर्सनली रिक्वेस्टिंग अनदर ऑफिसर, अगर यस है तो वहां पे क्या होगा, डेमी ऑफिशियल लेटर होगा। ठीक है, अगर इफ फर्स्ट पर्सन टोन अगर अर्जेंसी में है तो DO बनेगा, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी राइट्स टू जॉइंट सेक्रेटरी रिक्वेस्टिंग क्विक एक्शंस, तो ये हमेशा नॉर्मल लेटर की तरह होगा, जिसको डेमी ऑफिशियल लेटर होगा। ये कैजुअल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जब हम डेमी ऑफिशियल की लेटर के ड्राफ्टिंग वीडियो लाएंगे, उसमें आप उसका फॉर्मेट देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम की। ठीक है, एक ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, वो गवर्नमेंट नोटिस होता है या सर्कुलर होता है। याद रखो, ये एक नोटिस होता है, लेटर नहीं होता, या फिर कोई सर्कुलर होता है। तो आपको ये तो समझ आ गया कि नोटिस क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है। लेटर तो भेजा जाएगा, और नोटिस तो आप नोटिस बोर्ड पे भी लगा सकते हो। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, क्या डिसीजन ऑलरेडी हैज बीन टेकन, पहली चीज। अब आपको डिसीजन तो ले लिया गया है, और अब आपको क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ था कि डिसीजन ये ले लिया गया था कि ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग होगी तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे। किसको करोगे भाई, आप इन्फॉर्म करोगे या इंस्ट्रक्ट करोगे, किसको करोगे, आप अपने एडमिन डिपार्टमेंट को करोगे। फॉर व्हाट, फॉर योर ट्रेनिंग पर्पज।
तो इसमें डिसीजन अभी लिया नहीं जा रहा है, ना ही हमको कुछ यूपीएससी से इनसे कंसुलेशन की जरूरत है। हम ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं और लेकर हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, तब ऑफिस मेमोरेंडम बनेगा। क्यों यूज करते हैं कि हम एक्चुअली एम्प्लॉय को कुछ बताते हैं, या कुछ डिसीजन हमने जो लिया है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, या कुछ गाइडलाइंस देते हैं या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ हिडन वर्ड्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं देखो, या तो वहाँ पे ट्रेनिंग लिखा होगा, या गाइडलाइंस लिखा होगा, या क्लैरिफिकेशन, या कमिटी रिकमेंडेशन। ये कुछ वर्ड है, ये लिख लेना अपने नोट्स में। ट्रेनिंग हो, गाइडलाइंस हो, क्लैरिफिकेशन हो, या कमिटी रिकमेंडेशन हो, तब हमेशा ऑफिस मेमोरेंडम आएगा, याद रखो। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने लिख दिया, यूज टू कम्युनिकेट डिसीजंस इंस्ट्रक्शंस इनफॉर्मली इंटरनली। मिनिस्ट्रीज अटैच्ड ऑफिस एम्प्लॉयज अपने अपने एम्प्लॉयज को भेज सकते हैं। अगर डिसीजन इज फाइनल और इंटरनल है तो ओएम बनेगा। ठीक है, तो जैसे हमने हमारा जो क्वेश्चन आया था एम्स का, तो इससे रिलेटेड आया था, ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर एम्स एडमिन स्टाफ। लास्ट से लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया गया था, उसमें क्या लिखा गया था, वी विल। ठीक है, अब बात करते हैं ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर क्या होता है? ऑफिस ऑर्डर हमेशा याद रखो, एक ही वर्ड याद रखो, ऑफिस ऑर्डर इज यूज्ड फॉर डेली ऑफिस मैनेजमेंट। किसके लिए होता है? डेली ऑफिस मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, जो हु वर्क्स वेयर, कौन छुट्टी पे है, किसकी पोस्ट हो गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये कब लिखा जाता है? जब भी आपके डिपार्टमेंट को लगे कि जो आपका ऑफिस है वो स्मूथली रन हो। ठीक है, तो इसमें मैंने साफ शब्दों में लिख दिया, यूज्ड फॉर रूटीन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, कि आज कौन ऑफिसर कहाँ काम करेगा। मान लो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ और मैं चाहता हूँ कि दो यूडीसी को कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं भेज देता हूँ फॉर डेटा कलेक्शन या डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो मैं जो भी ऑफिस में ऑर्डर निकालूंगा वो होगा ऑफिस ऑर्डर। तो मैं कोई गवर्नमेंट में या फाइनेंस मिनिस्ट्री में दे नहीं रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, मैं अपने ही एडमिन डिपार्टमेंट में दे रहा हूँ। मतलब इंटरनल सेक्शंस या ऑफिसर्स को दिया जाता है डिसीजन, जो भी रूटीन बेसिस पे होते हैं। कि मान लो कोई ऑफिसर छुट्टी पे है, आप लीव पे हो, एक ऑफिसर लीव पे है, तो आप ऑफिसर ए लीव पे है, तो ऑफिसर बी को आप बोल दोगे कि आज ऑफिसर ए के काम को निपटाएगा क्योंकि वो काम अर्जेंट है। तो जब भी आपके डेली ऑफिस मैनेजमेंट का काम आएगा तो हमेशा क्या आएगा? ऑफिस ऑर्डर आएगा। तो ये सबसे ईजी है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड होंगे कि पोस्टेड, ट्रांसफर्ड, लीव ग्रांटेड, इस पर्सन को लीव ग्रांटेड है, तो या फिर ये आ जाएगा विद इमीडिएट इफेक्ट्स, तो आप हमेशा ऑफिस ऑर्डर लिखोगे। नाउ बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कब लिखा जाएगा? सबसे पहले आप समझो कि ऑर्डर क्या होता है। एंड ऑर्डर इज ए फाइनल कमांड। समझ रहे हो? ये क्या होती है? फाइनल कमांड है। किस किस के बारे में? अबाउट मनी, अबाउट पनिशमेंट। जब भी मनी एंड पनिशमेंट का कमांड दिया जाए तो हमेशा क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। बेसिकली यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल और डिसिप्लिनरी जो मैटर्स है, वो हमें जो मैटर्स है नीड स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी चाहिए। इसमें कुछ वर्ड्स होंगे जैसे अप्रूव्ड हो गया, कि उनको जो मनी और पनिशमेंट मिलती है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन की बात है। यूज टू कन्वे फाइनेंशियल सैंक्शन और डिसिप्लिनरी डिसीजन। किसी पर्सन पे आप फाइनेंशियल सेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आपने इतना पैसा फाइनेंशियल सैंक्शन हुआ है, मान लो कि प्रेसिडेंट ने, तो आप जब ऑर्डर पढ़ोगे ना तो उसमें ये आएगा कि प्रेसिडेंट सैंक्शंस, तो उसमें प्रेसिडेंट्स करके कुछ आएगा। वो जब हम फॉर्मेट्स पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑर्डर में प्रेसिडेंट के, या इसमें जीएफआर रूल्स के बारे में हम काफ़ी बात करते हैं। जीएफआर रूल्स के बारे में बात होती है, इसमें जीएफआर को कोट किया जाता है। क्यों किया जाता है मैंने बता दिया। जब भी पैसे से रिलेटेड सैंक्शंस हो, पैसा इतना सैंक्शन हुआ है, या किसी इंसान पे आप डिसिप्लिनरी एक्शन लगा रहे हो, तो हमेशा क्या होगा? ऑर्डर यूज होगा। ठीक है, या पेनल्टी। तो इसमें क्या क्या वर्ड आएगा? अगर सैंक्शंस वर्ड आए, पेनल्टी आए, या डिसिप्लिनरी एक्शन आए, तो हमेशा क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। इफ मनी और पनिशमेंट इन्वॉल्व, तो मनी। जैसे मान लो कि सैंक्शन ऑफ 10 लाख रुपए आ गया, तो आप सीधा क्या कर दोगे? ऑर्डर लिख दोगे। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, लॉजिक क्या होगा? जब भी क्वेश्चन ये दिया गया है और आपको फील हो रहा है कि क्या, तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, इज मनी सैंक्शन और पेनल्टी इम्पोज्ड? आप कहोगे यस, तो ऑर्डर बना दो बिना सोचे समझे। ठीक है,
जैसे सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो ये नहीं आता कि सैंक्शन ऑफ 20 lakhs इज हेयर बाय अकोडेड। अगर आप जब भी ऑर्डर लिखोगे तो ये लाइन आती है, ठीक है। इसका मतलब ये पैसा हो या सजा, बिना सोचे समझे ऑर्डर लगा लो। नाउ नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि नोटिफिकेशन होती क्या है। सबसे पहले तो वो बात करते हैं। एक्चुअली नोटिफिकेशन इज यूज टू मेक लॉ और रूल पब्लिक्स। ये याद रखना, नोटिफिकेशन हमेशा लॉ बनाने के लिए आती है या रूल्स बनाने के लिए आती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लीगल पावर की बात करते हैं। जब भी लीगल पावर की बात हो या गेजेट पब्लिकेशन की जब भी बात हो, गेजेट पब्लिकेशन की, तो क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी लॉ बना है, क्योंकि आप लॉ बनाओगे और लॉ जो भी बनाओगे उसको पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को पता चले। तो लॉ मस्ट बी ऑफिशियली पब्लिश्ड। जब भी मस्ट बी ऑफिशियली पब्लिश तो डेफिनेटली वो किस में होगा, नोटिफिकेशन में जाएगा, नोटिफाइड करोगे। तो इसमें अगर आपको एग्जाम में दिया गया हो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप अगर रूल्स और अमेंडमेंट वर्ड कहीं पे भी आपको नजर आए तो ये प्रोबेबल हो जाता है कि नोटिफिकेशन बनेगा। तो नोटिफिकेशन मैंने यहाँ लिख दिया, यूज टू नोटिफाई स्टेचुटरी रूल्स ऑर्डर्स वाया गेजेट। आप गेजेट में पब्लिश करवाओगे और ये किसको दिया जाता है, एक पब्लिक को, एट लार्ज। जैसे अभी मैं बताऊंगा, अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो एम्स है, एम्स में अब क्या होगा, जो आपके फाइनेंशियल सेक्शन होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि सैलरी है, वो क्या रहेगी। जस्ट इमेजिन, सिंपलेस्ट वे में समझा देता हूँ कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपको क्या मिलता है, पे प्रोटेक्शन मिलता है। तो पे प्रोटेक्शन का इन्फॉर्मेशन देना था और सभी एम्स में लागू करना था। लोगों को पता चलना चाहिए कि एम्स में भी अब पे प्रोटेक्शन लागू हो गया। तो आपने रूल्स बनाओगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, पर्टिकुलर दिस रूल्स, दिस इज नोटिफाइड दैट फ्रॉम आफ्टरवर्ड्स दिस पर्टिकुलर दिस वन डेट द पे प्रोटेक्शन विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एम्स एम्प्लॉय। तो आपने क्या किया है, एक पब्लिक को एट लार्ज लेवल पे इन्फॉर्म किया है और एक लॉ बना दिया, रूल बना दिया कि आज से पे प्रोटेक्शन एम्स के एम्प्लॉय को मिलने लग गया। तो आपने क्या लिखा, नोटिफिकेशन, ना कि लेटर लिखोगे, ना कि ऑर्डर लिखोगे। ऑर्डर तो मैंने बोल दिया ना, मनी और पनिशमेंट जब भी आए तो ही ऑर्डर आएगा, याद रख लो बस, समझ रहे हो। तो जब भी न्यू रिक्रूटमेंट्स रूल्स नोटिफाइड होते हैं तो हमेशा नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और इट इज ट्रीटेड एज रेजुलेशंस। अब बात करते हैं कि जब भी अपने आप से पूछो कि क्या ये लॉ और रूल है, यस। क्या गेजेट में पब्लिश करना है, यस, तो नोटिफिकेशन, ठीक है। अब रेजुलेशन की बात करते हैं। रेजुलेशन और नोटिफिकेशन में ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इन दोनों का मैं सिंपल सा बता दूं। रेजुलेशन क्या करता है, रेजुलेशन अनाउंस एक्चुअली बिग पॉलिसी डिसीजन। अब देखो यहाँ पे बिग पॉलिसी डिसीजन है, यहाँ पे लॉ एंड रूल्स की बात कर रहा हूं भाई, इस चीज को ध्यान रखना। ये रेजुलेशन हमेशा कौन से लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है या सेक्टर लेवल पे होता है। ये कहाँ किसको इन्फॉर्म करने के लिए था, एम्स के लिए था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट रेजुलेशन पास करेगी कि हमने ये कमेटी बिठाई है या ये कमीशन बिठाया है। अब मैं बताऊं, अगर आप एर्थ पे कमीशन देखोगे ना, एर्थ पे कमीशन का, एर्थ पे कमीशन किस में आया होगा, रेजुलेशन में आया है। क्यों, क्योंकि उसमें यह बोला गया कि एर्थ पे कमीशन में जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है, वो कमीशन की हेड करेगी एर्थ पे कमीशन में, और वो 18 मंथ में हमको बता देगी कि कितना पैसा इंक्रीज होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, ये सब। तो जब भी कमेटी फॉर पॉलिसी तो रेजुलेशन आएगा, और जब कमेटी फॉर रूटीन हो, याद रखना एक चीज, तो हमेशा क्या आएगा, ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि कुछ रूटीन वर्क होता है ना, तो उसके लिए कमेटी बैठती है तो ऑफिस मेमोरेंडम आएगा। क्योंकि मान लो ये तो फर्स्ट टाइम हुआ ना एर्थ पे कमीशन के लिए, अब मान लो कि एर्थ पे कमीशन में वापस रेजुलेशन में आ गया। अब दूसरा एर्थ पे कमीशन में ये डिसीजन लिया गया कि जो डीए मर्जर होगा, जो आपका 58% चल रहा है एर्थ, जो आपकी बेसिक पे में, वो रेजुलेशन में नहीं आएगा, वो किस में आया होगा, ऑफिस मेमोरेंडम में आया। जब वाइडर पब्लिक को इंफॉर्मेशन देना था तब तो उन्होंने रेजुलेशन दे दिया, लेकिन दोबारा से कमेटी बैठी और दोबारा से कमेटी ने ये डीए डिसाइड किया गया कि जो आपका 58% डीए था वो बेसिक पे में आपका
मर्जर होके और आपका न्यू फिटमेंट फैक्टर बनेगा या न्यू बेसिक पे न्यू मैट्रिक्स बनेगा, वो हमेशा ऑफिस मेमोरेंडम में आएगा। तो हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और आपको लगे कि इसमें कहीं मेजर पॉलिसी डिसीजन हो रहा है, यस, तो रेजुलेशन पे जाओ। समझ रहे हो? यानी कि जो भी बड़ी सरकारी सोच होती है ना, वो हमेशा रेजुलेशन लाती है। हम करने के थे भाई रेजुलेशन लाना है, बड़ी सरकारी सोच में तो बड़ी चीज। अब बात करते प्रेस कम्युनिकी और प्रेस नोट की बात करते हैं। तो प्रेस कम्युनिकी और प्रेस नोट्स कब यूज होते हैं? जब भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि मेरा मीडिया पब्लिसिटी हो। क्या हो? मीडिया पब्लिसिटी। तो इसमें आपको कैसे डिसाइड करना है कि मीडिया पब्लिसिटी हो? तो उसमें कुछ वर्ड होंगे, एक तो मीडिया, प्रेस और क्लैरिफिकेशन। ये जब भी सब मिल जाए तो ये पूछो कि ये जो क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन के पढ़ने के बाद में हमें कुछ पब्लिकली अनाउंस करना है या नहीं करना है, या मीडिया में पब्लिसिटी देनी है कि नहीं करनी है? अगर करनी है तो प्रेस नोट्स और प्रेस कम्युनिकी आएगा। तो इसमें मैंने साफ बोला है, देखो पहले रेजुलेशन की बात करें, यूज्ड फॉर इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें यूज्ड टू गिव वाइड पब्लिसिटी थ्रू मीडिया। ठीक है, तो प्रेस कम्युनिकी। अब जो रेजुलेशन आया था, देखो ये जो रेजुलेशन आया था, ये रेजुलेशन आएगा तो इसको आम आदमी, आपके गांव में बैठा हुआ आदमी तो पढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं। अब इस रेजुलेशन को क्या करेंगे, गवर्नमेंट ये कहेगी कि जो मीडिया हाउस है, ठीक है, जैसे पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उनको ये दे दो रेजुलेशन, वो अपनी तरफ से एक प्रेस नोट जारी कर देंगे कि भारत सरकार ने, जैसे अर्णव गोस्वामी ये सब लोग आते, भारत सरकार ने अभी अभी ये फैसला लिया है कि आपका 8th पे कमीशन में 5 गुना सैलरी हो जाएगी। ये सब ये प्रेस मीडिया में या प्रेस कम्युनिटी में है। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोर्समेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो मैं यहाँ पे ये भी लिख के रखा हूँ, अगर आपका इंटेंशन पब्लिसिटी का है तो प्रेस नोट्स आएगा हमेशा। ठीक है, अब प्रेस कम्युनिकी एंड प्रेस नोट्स में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा फॉर्मेट इशू या फॉर्मेट डिफरेंस होता है, वो हम फॉर्मेट वाले वीडियो में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको जानना है। अब बात करते हैं एंडोर्समेंट की, कि एंडोर्समेंट कब जब भी आएगा जब आपको कुछ चीज को फॉरवर्ड करना होगा, या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। याद रखो, जब भी फॉरवर्ड कॉपी, कि आपके पास कोई डिपार्टमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन भेजा और उसकी आपने कॉपी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दी। देखो मिनिस्ट्री ने एम्स को भेजा, एम्स ने फिर क्या किया, दूसरे एम्स को भेज दिया, या तो फॉरवर्ड कर रही है, या फिर जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है तो वो हमेशा एंडोर्समेंट में जाता है। इसका याद रखना। अब इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में हमेशा ही लिखा होगा कि आपको कॉपी फॉरवर्ड करना है या फॉर इन्फॉर्मेशन। ये जब भी वर्ड आए तो आपको एंडोर्समेंट यूज करना है। और इसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, जब भी किसी चीज को फॉरवर्ड कॉपीज या रिटर्न ओरिजिनल, या तो डिपार्टमेंट ऐसे बोले कि इस कॉपी को फॉरवर्ड कर दो, या ऐसे बोले कि जो आपके पास हमने पहले फाइल्स भेजी थी उसको रिटर्न कर दो, तो ये हमेशा एंडोर्समेंट के फॉर्म में आएगा। तो ऑब्वियसली बात है, एंडोर्समेंट ये ऑफिस दूसरे ऑफिस के लिए लिखेगा तो अदर ऑफिस के लिए लिखा जाएगा। इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, जो ऑलरेडी है वो बस कॉपी को भेजना होगा। तो इफ फॉरवर्डिंग कॉपी ओनली तो एंडोर्समेंट आएगा। मान लो कि आप फॉरवर्ड कर रहे हो एक लेटर को एम्स में, तो वापस अगेन यू आर राइटिंग द लेटर अगेन, तो वो एंडोर्समेंट हो। बात करते हैं मिनट्स। मिनट्स की बात करने से पहले मैं पहले बोला था जैसे एमसीआरई के बारे में, एमसीआरई में एग्जाम होगा नहीं होगा, आएगी नहीं आएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ मिनट्स में एक मीटिंग हो रही है, उस मिनट जब पब्लिकली आ जाएगा ना तब पता चल जाएगा कि आपकी एमसीआरई हो रही है नहीं हो रही। ऑफिशियल लगभग पता चल जाता है। तो मिनट्स होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, जो भी आपकी मीटिंग हुई है ना उसका जो रिकॉर्ड होता है, जो रिटर्न रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है, मिनट्स होता है। रिमेंबर दिस वन। तो इसमें क्या क्या आपके वर्ड मिल सकते हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये लिख सकता है कि ये मीटिंग हुई है, इतने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं और इन्होंने चेयर किया है। ठीक है, अब वापस जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन का रेजुलेशन निकाला। ठीक है, 8th पे कमीशन के रेजुलेशन में ये कहा गया है कि ये कमेटी हुई थी और उसको ये चेयर करेगी। तो वो रेजुलेशन पास होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, एक मिनट्स बिठाई थी। पहले मीटिंग हुई होगी, उस मीटिंग में जैसे मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की निर्मला सीतारमण ताई है, जो भी है, ये सब लोग बैठे होंगे। वो मीटिंग का डिस्कशन
लेटर निकला होगा कि हाँ भाई ये जो मल्होत्रा साहब है या रिटायर्ड जज है ये इस मीटिंग का हिस्सा होगा या फिर इस कमीशन का हिस्सा होगा। तो ये मीटिंग में कौन कौन चेयर किया था, मीटिंग हुई थी, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए, क्या क्या चेयर हुआ था, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो मिनट्स में लिखी जाती है। जैसे मैं बताऊं, अभी जैसे मान लो MCRE होगा या नहीं होगा, इसके लिए 5 तारीख को, जैसे संडे है, ठीक है, ये मंडे है, मंडे को मीटिंग बैठेगी। उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन लिया गया, कौन कौन बैठा था, वो सब चीज़ें मिनट्स में आती है, ठीक है। तो जब भी आपके पास आपको लगे कि क्या मीटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, यस, तो मिनट्स के लिए जाओ। तो रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग, डिस्कशन और डिसीजन, और इसमें मिनिस्ट्री हो या पार्टिसिपेंट्स ऐसा वर्ड आएगा, डिस्कशन हो, अगर मीटिंग रिकॉर्ड हो तो मिनट्स लिखा जाएगा, और इसके बेसिस पे आपका मिनट्स। तो ये हो गया एक, ये आपके मैं लगभग 10 चीज बता दिया, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब एक बात कर लेते हैं, और भी आता है, ईमेल आ सकता है भाई, और फैक्स। ईमेल और फैक्स ये नॉर्मली बेसिकली आपको पूछा नहीं जाएगा, बट अगर पूछ लिया जाएगा तो कैसे बनेंगे वो हम फॉर्मेट्स में, ये इसके बारे में सबको पता है, CC क्या होता है, BCC क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। अब मैं एक डिसीजन लेटर बनाया हूं, उस डिसीजन लेटर को मैं पूरी चीज़ों को समराइज करा देता हूं। पीछे से चलते हैं, कोई मीटिंग हुई, उसका रिकॉर्ड हुआ, तो आप अपने आप से पूछोगे क्या रिकॉर्ड हुआ, यस, तो मिनट्स बनेगा। आप कहोगे क्या जो मीटिंग हुई उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं, तो ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए जाएगा। तो आप अपने आप से पूछो क्या मीडिया पब्लिसिटी के लिए जाना है, यस, तो प्रेस नोट बनेगा। अगर कोई रूल्स बने, उस मीटिंग में ये रूल्स लिया गया, बनाया गया, तो क्या वो गैजेट में पब्लिश होगा, यस होगा, तो नोटिफिकेशन बनेगा। तो कुछ पॉलिसी डिसीजन हुआ, बिल्कुल हुआ है। ये पॉलिसी डिसीजन ये हुआ कि आपका ऐसे अर्थ पे कमीशन आएगा, और अर्थ पे कमीशन में ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी, ठीक है। 8वां पे कमीशन आएगा, उसमें ये फिटमेंट फैक्टर आएगा, तो एक रेजुलेशन। तो पॉलिसी डिसीजन बड़ा है तो रेजुलेशन आ जाएगा। इसमें देखो रूल्स नहीं बने, रूल्स तो यहाँ बना है कि आपका जो एम्स का है पे प्रोटेक्शन स्टार्ट होगा, और उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा जाएगा कि पे प्रोटेक्शन FR और SR के कौन से रूल्स के अंडर बना है, ठीक। अगर कोई पैसे से रिलेटेड है, पनिशमेंट है, अगर मिल रहा है तो ऑर्डर बनेगा। अगर कोई रूटीन सर्विस मैटर है, जैसे आपकी लीव हो गई, पोस्टिंग हो गई, डेली मान लो कि आज ये बंदा नहीं है तो आपको काम करना है, ठीक है, ये UDC वालों को कार्डियो में लगाना है तो ऑफिस ऑर्डर। और कोई भी इंटरनल डिसीजन है या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो ले चुके हैं, रिमेंबर वन थिंग, इसमें डिसीजन ले चुका है और उसके बाद इंस्ट्रक्ट करना है या फिर आप इन्फॉर्म कर रहे हो तो ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। और अगर ऑफिसर से ऑफिसर का अर्जेंट पर्सनल मैटर है तो DO लेटर, और या एक्सटर्नल बॉडी होगी तो लेटर। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट योर ड्राफ्टिंग। मैं ड्राफ्टिंग में आपको बिल्कुल नहीं समझाया हूँ कि फॉर्मेट क्या होगा। हम एम्स के लिए स्पेशली फॉर्मेट्स तैयार करेंगे, क्योंकि मैं पहले चीज़ बता दूं कि एम्स स्किल टेस्ट या उसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है। उसमें बिल्कुल ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ रख दिया, देन आप भारत सरकार यहाँ लिख रहे हो, ठीक है, देन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिख दिया आप यहाँ पे, फिर हिंदी में लिख दिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल दिया। ऐसे नहीं लिखना है भाई। फिर 25 जुलाई 2026 डाल दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने सर डाल दिया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डाल दिया, देन ये जैसे लेटर का फॉर्मेट। ऐसा नहीं होता। एम्स में फॉर्मेट इंटायरली डिफरेंट है जो आपकी, क्योंकि एम्स में आपका सिर्फ स्पेस बटन काम करेगा, उसमें कंट्रोल E, कंट्रोल L, कंट्रोल R ये सब यूज़ नहीं होंगे, समझ रहे हो। टेप बटन यूज़ करो या फिर आप स्पेस यूज़ करो, और हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा। तो लेफ्ट अलाइनमेंट में होगा तो फिर क्या हम फाइल नंबर इस तरफ डालेंगे या नहीं डालेंगे, ड्राफ्ट लिखना है या नहीं लिखना है, इसमें भी स्टार डालेंगे या नहीं डालेंगे, न्यू दिल्ली को स्टार से ऊपर रखना है नीचे रखना है, और लेफ्ट अलाइनमेंट में भारत सरकार को हिंदी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस लेटर, क्योंकि अब मैं एक वीडियो में 2 चीज़ ले आऊँगा। जैसे कल लेटर और ऑफिस मेमोरेंडम ले आएंगे, देन ऑफिस ऑर्डर ले आएंगे, रेजुलेशन नोटिफिकेशन ले आएंगे, प्रेस और मिनट्स ले आएंगे। तो मैं बोला था 5 वीडियो में आपका कंप्लीट ड्राफ्टिंग
हो जाएगा, देन मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्वेश्चंस दूंगा और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने कुछ लोगों को दिया था, वही क्वेश्चन आए थे, लगभग सिमिलर क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते भाई, ऑब्वियस सी बात है, मैं कोई एम्स का पेपर बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसी से रिलेटेड आएंगे जो मैंने टॉपिक बता दिया। ठीक है, उसी से रिलेटेड बाहर नहीं जाएंगे। जो सारा मुद्दा था, जो खेल था, वो था आइडेंटिफिकेशन का, कि आप आइडेंटिफाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और आई होप अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो इस वीडियो के कमेंट में आप बताओ आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, और कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, अगर आपको लगता है कि बहुत हेल्पफुल था तो लाइक करना, और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।